हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में एनटीए के लिए टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट 2 वीडियोस में हम बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस कर चुके हैं बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कंजुगेट एंड मॉडुलस डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे टॉपिक आर्गुमेंट। आर्गुमेंट हमारे पास 2 तरह के आर्गुमेंट्स होते हैं, जनरल आर्गुमेंट्स एंड प्रिंसिपल आर्गुमेंट। जो जनरल आर्गुमेंट है बेटा, दिस टर्म लाइज बिटवीन 0 to 2 pi. This term lies between 0 to 2 pi. For general argument, first of all, find out करोगे tan. For general argument, अगर कोई भी complex number given है बेटा, for general argument, first of all, हम tan find out करेंगे। That is modulus of y upon x. Modulus of y upon x is your tan alpha. Now, for argument check करेंगे बेटा coefficients. If both the coefficients are positive, for positive term we use first quadrant. If both the coefficients are positive, then we use first quadrant. Our theta lies in first quadrant, that is equal to theta is equal to alpha. Theta is equal to alpha हो जाएगा बेटा। If x is negative and y is positive, x negative हो जाएगा and y positive हो जाएगा, that means our theta lies between second quadrant, our theta lies in second quadrant, and this term is equal to theta and argument equal to 180 minus alpha. Pi means 1 pi radian ऐसा यूज करोगे, 180 minus alpha. Now third term student, if both the terms are negative, if both the coefficients are negative, then we use argument in third quadrant, and for third quadrant theta is equal to 180 plus alpha. Theta is equal to 180 plus alpha. For third quadrant we use argument equal to theta is equal to 180 plus alpha. Now if x is positive and y is negative, then argument lies in fourth quadrant, and for fourth quadrant we use theta is equal to 180 minus 360 minus alpha. Theta equal to 360 minus alpha. Theta equal to 360 minus alpha. Theta is equal to 360 minus alpha. Clear students? This is for general argument where theta lies between 0 to 2 pi. Theta lies between 0 to 2 pi. And if we use principal argument, and for principal argument we also use the name amplitude. If z is equal to x plus iota y है बेटा, if z is equal to x plus iota y, tan alpha again same आ जाएगा बेटा, tan alpha equal to modulus of y by x. Tan alpha is equal to modulus of y upon x. Now tan alpha is equal to modulus of y by x हो जाएगा बेटा. Now if both the coefficients are positive, then we use, in this case we use theta is equal to alpha. If x is negative and y is positive, then similarly in this case b theta lie करेगा in second quadrant, and for this term we use theta is equal to 180 minus alpha. Now if both the terms are negative, then our argument lies in third quadrant, but result is different for principal argument. Result different हो जाएगा बेटा for principal argument. In this case theta is equal to negative of this term. Theta is equal to minus of pi minus alpha. In this case theta is equal to minus of pi minus alpha. And if x is positive and y is negative, our argument lies in fourth quadrant,
and in this term theta is equal to negative of first part. Negative of first term is equal to theta is equal to minus alpha. Theta is equal to minus alpha. Clear hai? These terms are used for principal argument. In this case, theta lies between minus pi to pi. Means our principal argument always lies between minus pi to pi. Clear hai students? Difference between argument and principal argument. Now, क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बेटा. फर्स्ट टर्म है व्हाट इज द आर्गुमेंट. आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है. जर्नल आर्गुमेंट, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है देन वी यूज जर्नल आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ बेटा अगर टर्म गिवन है 1 माइनस एओटा रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एओटा रूट 3. फर्स्ट स्टेप बेटा रैशनलाइज करो. रैशनलाइज करो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. आर्गुमेंट देखो 2020 एग्जाम्स में भी आया है आपके. रैशनलाइज करोगे बेटा, दिस टर्म इज 1 माइनस एओटा रूट 3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस एओटा रूट 3. क्लियर है स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई करोगे बेटा न्यूमिनेटर टर्म, दिस नंबर इज 1 स्क्वायर हो जाएगा बेटा. दिस इज 1 a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. b स्क्वायर एओटा स्क्वायर इनटू 3 माइनस 2 रूट 3 एओटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 एओटा स्क्वायर. 1 माइनस 3 एओटा स्क्वायर. 1 माइनस 3 एओटा स्क्वायर. वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर बेटा, वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर इज -1. वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर -1. पुट करोगे बेटा वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर -1. देयरफॉर दिस टर्म इज 1 माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 एओटा होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3. This number is equal to, this term is also is equal to z is equal to minus 2 root 3 aorta whole divided by, बेटा सेपरेट करोगे 2 upon 4 minus 2 by 4. This term is written as minus 1 by 2. 2 by 4, this is minus 1 by 2. Again 2 by 4 is minus 1 by 2. That is root 3 aorta by 2. Now first of all find out karo tan alpha. For tan alpha we use modulus of y by x. Modulus of y by x means minus root 3 by 2 whole divided by minus 1 by 2. 2 बेटा कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा. tan alpha is equal to root 3. tan alpha is equal to root 3 है alpha, then tan alpha is equal to tan 60, that is pi upon 3. और we write this term as a 60. अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा बेटा. अल्फा 60 डिग्री है. फॉर जर्नल आर्गुमेंट we use theta and for coefficients both the coefficients are negative, minus comma minus, both the coefficients for complex numbers are negative. Therefore this term lies in third quadrant, and for third quadrant theta is equal to 180 plus alpha. Theta for third quadrant we use theta equal to 180 plus alpha. Now value of alpha is 60 degree. Therefore value of theta is equal to 240 degree. Value of theta is equal to 240 degree. This term is your final answer. Therefore final answer is A option. Our final answer A option is your final answer. बेटा A option for journal argument, A option is your final answer. Clear है बेटा? चेक करना है, एनडीए एग्जाम्स में आया क्वेश्चन, आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है. देन आंसर इज दिस टर्म. अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट आ जाएगा बेटा देन आंसर डिफरेंट हो जाएगा. क्लियर है बच्चों? नाउ बेटा अगेन कॉम्प्लेक्स एनडीए पास्ट ईयर क्वेश्चन है 2016. मॉडुलस फाइंड आउट करना है, बट इस केस में प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है बेटा. प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इक्वेशन को बेटा सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन. नाउ फॉर सिंप्लीफिकेशन z इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एओटा होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस, बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो a माइनस बी होल स्क्वायर. a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस एओटा स्क्वायर माइनस 2 एओटा. 1 प्लस एओटा स्क्वायर
minus 2 aorta. Now value of aorta square beta. Value of aorta square is value of aorta square. Value of aorta square आ जाएगा बेटा 1 plus 2 aorta upon 1 minus 1 minus 1 minus 2 aorta. बेटा 1 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 1 कैंसिल हो जाएगा बेटा. Then z is equal to न्यूमिनेटर टर्म बेटा 1 plus 2 aorta, डिनोमिनेटर टर्म बेटा चेक करो 1 माइनस एंड माइनस 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 प्लस हो जाएगा बेटा 2 aorta. कैंसिल हो जाएगी टर्म z is equal to 1 हो जाएगा बेटा. 1 only 1 that means imaginary term is 0. Only 1 that means imaginary term is 0. Now first part बेटा बहुत ही सिंपल है आपके लिए, मॉडुलस फाइंड आउट करना है आपने. फॉर मॉडुलस सिंपल बेटा मॉडुलस फाइंड आउट करो, दैट इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 1 1 1 1 1. दिस टर्म इज योर 1. फाइनल आंसर इज योर सी ऑप्शन. 1 मॉडुलस हो जाएगा बेटा. नाउ सेकंड पार्ट इज बेटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड आउट करना है. प्रिंसिपल आर्गुमेंट. नाउ tan alpha is equal to 0 upon 1. Therefore tan alpha is equal to 0. tan 0 0, alpha is equal to beta 0 हो जाएगा. Now both the coefficients are positive. Both the coefficients are positive. Positive comma positive lies in which quadrant? First quadrant. Positive comma positive lies in first quadrant. And in first quadrant theta is equal to alpha आ जाएगा बेटा. Therefore theta is equal to 0. Therefore our principal argument is 0. Principal argument बेटा 0 हो जाएगा. कोई डाउट है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है. देखो बेटा नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करोगे बेटा. नेक्स्ट टर्म है बेटा पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म मींस एक्सप्रेस एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिग्नोमेट्रिकल पार्ट. दिस टर्म इज यूज्ड एज पोलर फॉर्म. Polar form. Z is equal to x plus aorta y. Therefore, in this case, express करना है बेटा in case of polar form. In this case, we use theta as a principal argument. Theta as a principal argument use करोगे बेटा. Principal argument. Now, for trigonometrical term, we write this term as a r cos theta plus aorta sin theta. Where theta is your argument. Theta is your argument, principal argument. Theta is your principal argument, not a general argument. Theta principal argument है and r is equal to modulus of z है बेटा. R is equal to modulus of z है बेटा. R is equal to modulus of z. Now क्वेश्चन करोगे बेटा. The modulus and amplitude form of this term. Modulus and amplitude form means polar form. बेटा एनडीए क्वेश्चन ही है 2018. मॉडुलस एंड एम्पलीट्यूड फॉर्म चेक करोगे बेटा. नाउ tan अल्फा इज इक्वल टू बेटा कोएफिशिएंट्स चेक करो √3 and 1, मतलब y is 1, x is √3. tan अल्फा इज इक्वल टू 1 by √3. नाउ tan अल्फा इक्वल टू tan 1 by √3 means tan 30, that is equal to pi by 6. अल्फा इज इक्वल टू पाई अपॉन 6 हो जाएगा बेटा. नाउ बोथ द कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव इन दिस क्वेश्चन. बोथ द कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव. इफ बोथ द कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव देन क्वाड्रेंट कौन सा आ जाएगा बेटा? क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा. इफ बोथ द कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट थीटा इज इक्वल टू For first quadrant, theta is equal to alpha. So therefore, theta is equal to pi upon 6. बेटा theta is equal to pi by 6 हो जाएगा. And modulus of r. Modulus of r बेटा means z given है √3 plus aorta term. Its modulus of z means √3 square plus 1 square. This term is equal to 3 plus 1. √4 means 2 हो जाएगा बेटा. दैट इज इक्वल टू r. r हो जाएगा बेटा मॉडुलस ऑफ z. क्लियर है बेटा? नाउ r हो जाएगा 2. देन बेटा z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस एओटा साइन. cos थीटा प्लस एओटा साइन थीटा हो जाएगा बेटा. वैल्यू
value of r is 2 and value of theta beta pi by 6, pi upon 6 sin pi by 6. Your final answer for modulus amplitude form or polar form. Answer is B option is your beta final answer. Therefore B option is your final answer. B option beta final answer है. Clear है बेटा? Easy questions है. The polar form of this term. Same question है बेटा, polar form find out करनी है. किस तरह हो जाएगी बेटा? Z is equal to 1 plus 7 iota whole divided by denominator बेटा a minus b whole square formula apply करो. Denominator a minus b whole square formula that is equal to 4 plus iota square minus 4 iota. Value of iota square minus 1. Therefore this term is written as 1 plus 7 iota upon 3 minus 4 iota. बेटा rationalize करोगे. Rationalization 3 plus 4 iota whole divided by 3 plus 4 iota. 3 plus 4 iota whole divided by 3 plus 4 iota. Now numerator term beta multiply करो. This term is 3 plus 4 iota plus 21 iota plus 28 iota square whole divided by a minus b into a plus b. That is, this term is equal to a square minus b square. That is 9 minus 16 iota square. A square means 3 square 9, 4 square मतलब 16 iota square. Now beta value of iota square is equal to 3. देखो बेटा a value of iota square put करोगे at these two places. 3 plus 25 iota minus 28 हो जाएगा बेटा whole divided by 9 plus 16. Value of iota square minus 1 plus हो जाएगा, plus है then minus हो जाएगा. This term is equal to minus 25 plus 25 iota whole divided by 25. बेटा 25 कॉमन हो जाएगा, 25 कॉमन, therefore z is equal to minus 1 plus iota. Z is equal to बेटा हो जाएगा minus 1 plus iota. Now find out करोगे बेटा modulus, sorry, first of all theta find out करोगे. For theta we find out tan alpha is equal to modulus of 1, coefficient of iota is 1 upon minus 1. Cancel हो जाएगा बेटा. Tan alpha is equal to 1. 1 means tan 45. Therefore our angle alpha is equal to pi upon 4 हो जाएगा बेटा. Alpha pi by 4 हो जाएगा. Now coefficient check करो बेटा. Negative positive. Negative comma positive lies in second quadrant. And for second quadrant for principal argument we use theta is equal to 180 minus alpha. Here alpha is equal to pi by 4. Means value of theta is equal to 3 pi by 4 हो जाएगी बेटा. Value of theta 3 pi by 4. Now find out करो बेटा value of alpha. Sorry, value of theta हो गया. Sorry, find out करो बेटा value of modulus. Modulus means value of r find out करो बेटा. Value of r find out करोगे बेटा. R means mod of z. Mod of z means modulus of this complex number. Modulus of this complex part is minus 1 square plus 1 square. Coefficient of iota is also 1 square. Now this term is beta root 2. Our r is root 2. Theta is 3 pi by 4. Put करो बेटा in polar form. Z is equal to r cos theta plus iota sin theta. Value put करो बेटा. Value of r root 2. Value of theta cos 3 pi by 4 plus iota sin 3 pi by 4. Clear है बेटा? कोई डाउट है? बहुत इजी क्वेश्चंस है बेटा. Clear है टर्म? Means A option is your final answer. A option final answer है बेटा. Clear है क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है बेटा काफी. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक. हर बार पास्ट ईयर से इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, पक्का ही आ रहा है पिछले कुछ ईयर से. जो आर्गुमेंट मॉडुलस से डिफरेंट क्वेश्चन आएगा
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से एक क्वेश्चन आ जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। व्हाट इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? मींस इफ z इज इक्वल टू बेटा 1 रेज़ टू पावर 1/3 है, यूनिटी मींस 1, यूनिटी मींस बेटा 1 रेज़ टू पावर 1/3 है। क्यूबिंग करो बेटा, क्यूबिंग करोगे z क्यूब इज इक्वल टू 1, z क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, z माइनस 1 बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो, a क्यूब माइनस b क्यूब, a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 0 और सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0। if first term is equal to 0 then z is equal to 1, if first term is equal to 0 then z is equal to 1, if second term is equal to 0, if second term is equal to 0 then अगर second term is equal to 0 हो जाएगी बेटा, then in this case रूट्स फाइंड आउट करो, डायरेक्टली रूट्स फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, देन डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट d is equal to b square minus 4ac, value of b 1 square, value of a and c is also 1, that is equal to 1 minus 4, मतलब minus 3 हो जाएगा बेटा d minus 3 हो जाएगा, z is equal to minus b minus 1 plus minus under root of minus 3 whole divided by 2. Under root of minus 3 is written as root 3 aorta. This term is written as root 3 aorta. This term is written as root 3 aorta, means plus minus root 3 aorta. These values, आंसर है बेटा, एक्चुअली 3 आंसर्स आ गए बेटा। फर्स्ट आंसर 1, सेकेंड आंसर -1 plus minus root 3 aorta by 2. For -1 plus minus root 3 aorta by 2, for these two terms, we use name for -1 plus root 3 aorta by 2 or for -1 minus 3 aorta by 2. We use name as a omega and omega square बेटा, omega and omega square, नेम करो बेटा इसे omega and omega square, omega and omega square, कोई भी नेम, मतलब पॉजिटिव टर्म ओमेगा स्क्वायर, नेगेटिव ओमेगा और पॉजिटिव ओमेगा नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर, बेटा कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी नेमिंग करो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर करो। मीनिंग स्टूडेंट्स, अगर कोई भी पर्सन आपसे पूछे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अप टू 10th स्टैंडर्ड, आप बोलते थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1, बट नाउ अगर स्क्वायर रूट है 2 आंसर होंगे, क्यूब रूट है 3 आंसर्स होंगे, फोर्थ रूट है 4 आंसर्स होंगे। फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपके पास कितने आंसर्स होंगे? 3 आंसर्स, दैट इज 1 एंड अदर 2 आर दीस 2, नेम एज ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, मतलब आपके पास 3 आंसर्स होंगे, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब रूट फाइंड आउट करोगे आपके पास 3 आंसर्स आएंगे। फॉर 1 अगर 1 का क्यूब रूट करोगे 3 आंसर्स हैं बेटा, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है बेटा? बेटा इसे याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए फॉर एनडी एग्जाम्स के लिए। नाउ कुछ प्रॉपर्टीज जो कि बहुत यूजफुल है फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बेटा इसका किसी भी तरह से यूज करोगे मींस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा, देन वी राइट दिस टर्म एज अ माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बेटा, देन वी राइट दिस टर्म एज अ माइनस ओमेगा। अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बेटा, देन वी राइट दिस टर्म एज अ -1। क्लियर है बेटा? इस तरह यूज करोगे। नाउ बेटा ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा क्यूब सिमिलर है, ओमेगा इज द रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा? दैट मींस 1 हो जाएगा। क्लियर है? नाउ 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर n प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 2n, कोई भी नंबर है, इफ n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, अगर n 3 का मल्टीपल नहीं है, अगर n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, देन आंसर ऑफ दिस टर्म इज ऑलवेज 0। बट इफ n इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देन आंसर इज 3। मीनिंग बेटा अगर मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, मींस अगर n 1 है, 1 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आंसर इज 0। अगर आंसर n मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4, आंसर इज 0। बट अगर n इज अ मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा बेटा, मींस 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा 6। अगर मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगा बेटा, 1 ओमेगा क्यूब ओमेगा 6, दिस टर्म इज आल्सो 1 एंड लास्ट टर्म इज 1, आंसर इज
3 in this case. Clear है students? But this term is also important. In the case of cube root of if one root of the number is alpha, then other two roots are alpha omega and alpha omega square. बेटा काफी अच्छी प्रॉपर्टी है. मीन्स अगर आपके पास कोई भी नंबर है बेटा, अगर 8 है, क्यूब रूट ऑफ 8 नॉर्मली लिखते हैं 2, बट ओनली 2 आंसर नहीं है, 3 आंसर्स हैं, 2 ओमेगा एंड 2 ओमेगा स्क्वायर. सिमिलरली अगर बेटा 27 क्यूब रूट आ जाए, क्यूब रूट ऑफ 27, आंसर्स बोलो, क्यूब रूट ऑफ 27, देन आवर आंसर्स आर 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर. हमारे 3 आंसर्स आ जाएंगे. क्लियर है बेटा? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा, omega and omega square are reciprocal of each other. They are reciprocal of each other. Means omega is equal to 1 by omega square और omega square is equal to 1 by omega. बेटा देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे omega cube is equal to 1 हो जाएगा. क्लियर है? They are reciprocal of each other. नेक्स्ट टर्म है बेटा, omega and omega square are square root of each other. Omega and omega square are square root of each other. Means अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा करोगे बेटा, इससे आंसर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, एंड ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर रूट करोगे बेटा, आंसर ओमेगा हो जाएगा. ओमेगा मींस पूरा वैल्यू पुट करके अगर बेटा आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे, कंप्लीट वैल्यू पुट करके. अ कॉम्प्लेक्स नंबर a plus iota by if is in the form of 1:√3 और √3 रेशो फॉर्म. अगर बेटा क्वेश्चन 1:√3 और √3 रेशो फॉर्म हो जाएगा, इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व द क्वेश्चन इज एक्सप्रेस, चेंज करो बेटा अपना क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एंड एयोटा फॉर्म. अगर बेटा इन क्वेश्चन अगर आपके पास 1:√3 और √3 रेशो 1 हो जाए, क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा अगर आप इस टर्म को कन्वर्ट करोगे इन एयोटा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. क्लियर है? लास्ट टर्म बेटा, अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए एंड इक्वेशन दिस आ जाए, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, अपने आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे बेटा ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. अगर किसी भी क्वेश्चन में आपके पास ये इक्वेशन आ जाए, देन इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे आपके पास, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. डायरेक्ट इस इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे. क्लियर है बेटा? नाउ देखो बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन. इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म. बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म करनी है 1 प्लस ओमेगा क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यूब. देखो बेटा रिजल्ट यूज करोगे इन दिस केस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा फ्रॉम दिस टर्म इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, पावर 3 हो जाएगा बेटा, माइनस वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, वैल्यू ऑफ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा बेटा, माइनस ओमेगा क्यूब हो जाएगा. नाउ दिस टर्म इज रिटन एज माइनस ओमेगा 6 स्क्वायर क्यूब, माइनस बाहर आएगा क्योंकि ऑड पावर है, अगेन ऑड पावर है, माइनस बाहर आ जाएगा. दिस टर्म इज रिटन एज ओमेगा क्यूब. वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब 1, वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब 1, omega cube 1 then omega 6 is also 1, omega 6 is also 1, this term is 1 and second term omega 6 is also 1. Therefore our term answer is minus 1 and plus 1. minus 1 and plus 1 बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बेटा 0. That means A option is your final answer. A option is your final answer. बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. नेक्स्ट बेटा, if omega be the cube root of unity, then value of this term and this term, बेटा वैल्यू फाइंड आउट करोगे फॉर these two terms. अगेन बेटा सेम फॉर्मूला यूज हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0. नाउ इन फर्स्ट केस, अगर फर्स्ट केस है बेटा पॉसिबल है लिखना बेटा दिस टर्म एज अ ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज टू पावर 5 एंड सेकंड टर्म बेटा सेम हो जाएगी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 5. Now value of 1 plus omega square, value of 1 plus omega square is equal to minus omega, that is minus omega 5. Next term beta, value of 1 plus omega, value of 1 plus omega is equal to minus omega square minus omega raised to power 5. This value is minus 2 omega raised to power 5 minus 2 omega square raised to power 5. Beta power करो, 2 power 5 is 2 power 5 is 32. 2 power 5 is minus 32 omega 5. Next term minus 32 omega 10. Beta value of omega 5. Omega cube is 1. Therefore remaining part is omega cube beta 1 है.
रिमेनिंग पार्ट क्या बचेगा बेटा आपके लिए, दिस टर्म इज इक्वल टू -32 ओमेगा क्यूब 1 है, रिमेनिंग पार्ट बचेगा बेटा ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली सेकंड टर्म -2 ओमेगा आउट ऑफ ओमेगा 10 ओमेगा 9 इज 1, ओमेगा क्यूब 1 है, ओमेगा 9 इज आल्सो 1, रिमेनिंग पार्ट इज ओमेगा। नाउ बेटा कॉमन आ जाएगा -32, remaining term is omega square plus omega, and value of omega square plus omega from this expression, this term is equal to -1, -32 into -1, therefore final answer is 32. 32 means B option is your final answer. B option बेटा आपकी final answer हो जाएगा। क्लियर है बेटा? काफी इजी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर अगेन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, देन रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन फाइंड आउट करोगे बेटा, रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन आप फाइंड आउट करोगे बेटा, इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट करोगे। इस तरफ बेटा +8 है, शिफ्ट करोगे, अगर आप शिफ्ट करोगे दिस टर्म इज इक्वल टू -8 हो जाएगा बेटा, -8। नाउ क्यूब है बेटा, शिफ्ट करो, आवर क्यूब रूट टर्म हो जाएगी बेटा, क्यूब रूट ऑफ -8 हो जाएगा, 8 raised to power 1/3 हो जाएगा। नाउ क्यूब रूट ऑफ -8 इज बेटा, क्यूब रूट ऑफ -8 normally we write cube root of 8 is 2, cube root of -8 is -2, cube root of -8 is -2, but अगर क्यूब रूट है 3 आंसर्स हो जाएंगे, 3 आंसर्स मींस फर्स्ट रूट इज -2, अदर 2 रूट्स आर -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा, 3 रूट्स आ जाएंगे बेटा, फर्स्ट रूट -2, अदर 2 रूट्स आर -2 ओमेगा एंड -2 ओमेगा स्क्वायर। नाउ बेटा x -1 इज इक्वल टू -2 है, सेकेंड आंसर x -1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा है, नेक्स्ट आंसर x -1 इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, x इज इक्वल टू बेटा हो जाएगा -1, x इज इक्वल टू 1 - 2 ओमेगा, लास्ट टर्म x इज इक्वल टू 1 - 2 ओमेगा स्क्वायर, बेटा 3 आंसर्स आ जाएंगे, 1 -1 बी ऑप्शन, बी ऑप्शन बेटा फाइनल आंसर है। क्लियर है बेटा? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। नाउ बहुत इजी क्वेश्चन बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन, एनडीए क्वेश्चन है बेटा, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो बेटा 1 + एओटा -1 + एओटा √3/2, देखो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दिस टर्म इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा है बेटा, ओमेगा, एंड सेकेंड टर्म अगर इसको आप ओमेगा यूज करोगे, सेकेंड टर्म बेटा ओमेगा स्क्वायर यूज करोगे, अगर फर्स्ट टर्म ओमेगा यूज करोगे ओमेगा रेज़ टू पावर n, सेकेंड टर्म ओमेगा रेज़ टू पावर 2n हो जाएगा बेटा, n रिजल्ट हमने लिखा था बेटा 1 + ओमेगा रेज़ टू पावर n + ओमेगा रेज़ टू पावर 2n, आंसर दो है बेटा इसके 0 and 3, अगर मल्टीपल ऑफ 3 है देन, अगर नॉट 3 है, n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 देन आंसर 0 हो जाएगा। नाउ हियर n इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3 मींस आंसर बेटा 0 है, आंसर इज इक्वल टू 0, 1 + ओमेगा रेज़ टू पावर n, 1 ओमेगा n ओमेगा रेज़ टू पावर 2n इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वैल्यू ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, वैल्यू ऑफ फर्स्ट टू टर्म इज इक्वल टू -1, बेटा डायरेक्टली आंसर आ गया -1। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ बेटा। नेक्स्ट टर्म बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस टर्म, एनडीए क्वेश्चन है, अगेन देखो बेटा एनडीए क्वेश्चन 2019 क्वेश्चन है बेटा, एंड बेटा 1:√3 है, 1:√3 है, दैट मींस कन्वर्ट करो क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और एओटा फॉर्म कन्वर्ट करोगे। नाउ बेटा चेक करो बेटा, फॉर ओमेगा इफ वी राइट ओमेगा एज अ -1 + √3 एओटा/2 and omega square as a -1 - √3 aorta/2, क्लियर है? फॉर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एओटा विद √3 है बेटा, सो फॉर √3 अगर आपने लगाना है फॉर एओटा, देन विद √3 अगर एओटा लेके आना बेटा, देन मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एओटा करो बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म्स, आप अपनी न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म्स में मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एओटा करोगे बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एओटा, क्लियर है बेटा? बेटा मल्टीप्लाई करो, दिस नंबर इज एओटा स्क्वायर प्लस √3 एओटा होल डिवाइडेड बाय एओटा पावर 2019 बेटा, मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एओटा करोगे 2 भी आएगा, इन दिस केस भी 2 आएगा। नेक्स्ट टर्म बेटा, दिस टर्म इज -√एओटा स्क्वायर प्लस √3 एओटा
माइनस रूट थ्री एओटा बेटा, सॉरी दिस टर्म इज एओटा स्क्वायर माइनस रूट थ्री एओटा होल डिवाइडेड बाय 2 एओटा पावर 2019. नाउ वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर बेटा, वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर इज -1. चेंज करो बेटा, वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर इज -1 अकॉर्डिंग टू आवर टर्म. चेक करो बेटा, -1 प्लस रूट थ्री एओटा बाय 2, -1 प्लस रूट थ्री एओटा बाय 2. दिस टर्म इज इक्वल टू -1 plus root 3 aorta by 2. This term is written as omega. And second term, this part is written as omega square. बहुत easy question हो जाएगा बेटा. First term is written as omega and second term is written as omega square. First term is written as omega and second term is written as omega square. बेटा convert करो. First term is omega upon 2. सॉरी विद एओटा नहीं, विद 2 आएगा. सॉरी बेटा, विद 2. रिमेनिंग पार्ट बेटा नीचे एओटा बचेगा, रिमेनिंग पार्ट एओटा बच जाएगा बेटा. पावर 2019 है. सिमिलरली इन सेकंड पार्ट भी बेटा 2 ही आएगा. दिस टर्म इज ओमेगा स्क्वायर अपॉन एओटा रेज़ टू पावर 2019. क्लियर है बेटा? नाउ चेक करो बेटा, न्यूमिनेटर पावर इज 2019 अपॉन एओटा 2019. सेकेंड टर्म ओमेगा 40, देखो बेटा मल्टीपल ऑफ 2019 है, 38 4038 हो जाएगा बेटा. 4038 अपॉन एओटा रेज़ टू पावर 2019. बेटा 2019 10 12 डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा क्योंकि टोटल डिविजिबल बाय 3 है. टोटल डिविजिबल बाय 3 है 9 10 12. टोटल डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस टर्म इज आल्सो डिविजिबल बाय 3. ऊपर न्यूमिनेटर 1 हो जाएगा, न्यूमिनेटर क्योंकि इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3 है बेटा, मल्टीपल ऑफ 3 है, देयरफॉर 1. डिनोमिनेटर 2016 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, देयरफॉर रिमेनिंग पार्ट बचेगा बेटा एओटा क्यूब. सिमिलरली इन दिस केस 8 12 15 अगेन मल्टीपल ऑफ 3 है, 1 हो जाएगा बेटा. सिमिलरली नीचे एओटा क्यूब बचेगा बेटा. देखो दिस टर्म इज आल्सो रिटन एज 2 अपॉन एओटा क्यूब. वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब इज, वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब इज, अगर बेटा आप वैल्यू ऑफ एओटा क्यूब लगाओगे इन डिनोमिनेटर पार्ट, दिस टर्म इज माइनस एओटा. रैशनलाइजेशन करो, कुछ भी करो, एओटा अपॉन एओटा, दिस नंबर इज 2 एओटा अपॉन माइनस एओटा स्क्वायर. बेटा डिनोमिनेटर वैल्यू ऑफ एओटा स्क्वायर -1 हो जाएगी, दिस टर्म इज 1, therefore 2 aorta is final answer. C option is your final answer. C option final answer हो जाएगी बेटा. बहुत इजी क्वेश्चन है, C option आपकी फाइनल आंसर बन जाएगी. क्लियर है बेटा? नाउ इजी एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए. देखो बेटा अगेन एनडीए पास्ट ईयर क्वेश्चन है, सारे ही एनडीए पास्ट ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, बेटा मैंने लास्ट प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशंस आर बिल्कुल ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. बेटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं ओमेगा एंड अदर रूट इज ओमेगा स्क्वायर. नाउ बेटा मींस वैल्यू ऑफ अल्फा ओमेगा है, वैल्यू ऑफ बीटा ओमेगा स्क्वायर लिख दो बेटा. बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म करनी है. फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पार्ट, समेशन ऑफ j इज इक्वल टू 0 to 3 अल्फा पावर j प्लस बीटा पावर j. बेटा j 0 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म इज 0 पुट करो बेटा, दिस नंबर इज 1 प्लस 1. ये सेपरेटली लिख लो बेटा. फॉर अल्फा 0 पुट करोगे बेटा 1 हो जाएगा, 1 पुट करोगे अल्फा, 2 पुट करोगे अल्फा स्क्वायर, 3 पुट करोगे अल्फा क्यूब. सिमिलरली फॉर बीटा भी पुट करोगे. फॉर समेशन वी यूज सम टर्म, फॉर समेशन वी यूज सम टर्म. नेक्स्ट टर्म बेटा किस तरह हो जाएगी? नेक्स्ट टर्म 0 पुट करोगे 1, देन बीटा स्क्वायर, देन बीटा क्यूब. क्लियर है बेटा? नाउ वैल्यू ऑफ अल्फा इज ओमेगा. बेटा वैल्यू ऑफ अल्फा पुट करो ओमेगा, वैल्यू ऑफ अल्फा बेटा ओमेगा पुट करोगे 1, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब. क्लियर है? नेक्स्ट टर्म बेटा ओमेगा स्क्वायर पुट करोगे 1, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 4 ओमेगा 6 हो जाएगा बेटा. देखो बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0 एंड वैल्यू ऑफ ओमेगा क्यूब इज 1.
Similarly, in second case, omega 4 means omega cube 1. This term is also 0. This term is also 0 and omega 6 is also 1. Therefore, 1 and 1, 1 plus 1, 1 plus 1 is equal to 2 हो जाएगा. 1 plus 1 remaining बचेगा बेटा. This term is equal to 2. 2 is your final answer. मतलब D option is your final answer. बेटा clear है? D option आपकी final answer हो जाएगा. Clear है? Now, next बेटा, inequality based on modulus. Actually बेटा modulus based inequality है, अच्छी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है. इसके बेस्ड भी क्वेश्चन ऑलरेडी पास्ट ईयर्स में आ चुका है. देखो बेटा, अगर मॉडुलस है बेटा, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2, मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 है बेटा, सेपरेट करोगे मॉडुलस ऑफ z1 सेपरेट, मॉडुलस ऑफ z2 बेटा सेपरेट हो जाएगा विद इनइक्वालिटी सिंबल. सेपरेट करोगे बट विद इनइक्वालिटी सिंबल आएगा. सिमिलरली अगर नेगेटिव टर्म सेपरेट करोगे इनइक्वालिटी सिंबल, ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा, बट वी यूज डबल मॉड मींस ऑलवेज आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. वी यूज डबल मॉड सो दैट आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. नाउ बेटा, mod of z5 given है, then the least and greatest value of this part find out करनी है बेटा. least and greatest value of this part find out. बेटा जिस भी टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वैल्यू ऑफ दिस टर्म फाइंड आउट. प्रॉपर्टीज यूज करोगे बेटा, जो मैं लास्ट प्रॉपर्टीज दिखाई उसको यूज करोगे. किस तरह यूज होगी प्रॉपर्टी? फॉर मिनिमम वैल्यू वी यूज फॉर मैक्सिमम वैल्यू वी यूज एडिशन प्रॉपर्टी. मतलब वी राइट दिस टर्म एज अ लाइक दिस z1 प्लस z2 फॉर्म. बेटा कन्वर्ट करो z1 प्लस z2 फॉर्म एंड प्रॉपर्टी अप्लाई करो मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2 लेस देन इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 मींस z प्लस मॉड ऑफ z2 मींस माइनस 5 प्लस 12. क्लियर है बेटा? मॉडुलस ऑफ z इज 5 एंड मॉडुलस ऑफ दिस नंबर, मॉडुलस ऑफ दिस पार्ट इज 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर. 5 square plus 12 square that is equal to 25 plus 144, 169 हो जाएगा. 13 बेटा this term means this term is equal to 5 plus 13. 5 plus 13 means 18. Our maximum value is, in this case maximum value is 18. बेटा maximum value आ जाएगी 18. 18 means maximum value of this part is equal to 18. बेटा अगर देखोगे तो आंसर पता लग गया 18 ओनली इन सी पार्ट है. मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 18, दैट मींस मिनिमम 8 ही हो जाएगी. बट कंप्लीट मेथड देखो बेटा, फॉर मिनिमम वैल्यू दिस इज मैक्सिमम वैल्यू. नाउ मिनिमम वैल्यू पुट करोगे बेटा, फाइंड आउट करोगे मिनिमम वैल्यू बेटा किस तरह फाइंड आउट हो जाएगी? वी राइट आवर एक्सप्रेशन z minus 5 plus 12 iota is in the negative form. In negative form we write 5 minus 12 iota. बेटा हम लिखेंगे इस टर्म को 5 माइनस 12 iota. दिस टर्म इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस है बेटा, दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू, दिस टर्म इज अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी दिस इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू mod of z minus modulus of this part and whole modulus. बेटा वैल्यू ऑफ दिस पार्ट 5 minus 13 and whole modulus है बेटा that is equal to 8. means this is our minimum value and 18 is our maximum value. minimum value बेटा 8 हो जाएगी and maximum value 18 हो जाएगी. मतलब C ऑप्शन बेटा फाइनल आंसर हो जाएगी. C ऑप्शन फाइनल आंसर हो जाएगा. क्लियर है बेटा? नाउ देखो बेटा एनडीए में आ चुके हैं. मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, टर्म वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस टर्म की. देखो बेटा द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1, वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ z प्लस 1 गिवन वैल्यू है बेटा मॉड ऑफ z प्लस 4 इज योर गिवन टर्म. बेटा मॉड ऑफ z प्लस 4 इज योर गिवन टर्म है बेटा. वी राइट मॉड ऑफ z प्लस 1 इज इन द फॉर्म ऑफ z प्लस 4 माइनस 3. पॉसिबल है बेटा लिखना? नाउ 4 minus 3. Now this term is written as mod of z plus 4 plus minus 3 less than is equal to mod of z plus 4 plus modulus of minus. Mod of z plus 4, this term is less than is equal to 3 plus 3 means our maximum value is 6. Value आ जाएगी बेटा 6. C option is your value of. Clear है बेटा? C option आपकी फाइनल आंसर हो जाएगा 6 आंसर. क्लियर है टर्म? नो बेटा बहुत ही इजी क्वेश्चन है.
एनडीए 2017 क्वेश्चन है बट डिफरेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूं। ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करोगे बेटा z स्क्वायर, मैंने आपको बताया था अगर कुछ भी गिवन नहीं है देन वी पुट z इज इक्वल टू x प्लस एओटा वाई। अब डायरेक्टली वैल्यू ऑफ z x प्लस एओटा वाई पुट करोगे बेटा इन दिस एक्सप्रेशन z स्क्वायर माइनस एओटा, पुट करो बेटा दिस नंबर इज इक्वल टू x प्लस एओटा वाई होल स्क्वायर माइनस एओटा। बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो, a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस एओटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy एओटा माइनस एओटा। नाउ value of aorta square is -1, value of this part is x square minus y square plus aorta common 2xy minus 1. Now real part of this term, real part of this expression is only first term, real part of this expression is only x square minus y square. देखो ना, this part is real, this part is imaginary. Therefore, real part is only this expression. First term is your real part, and the value of real part is 2. And the value of real part is 2. Therefore, 2 is equal to x square minus y square. बेटा जो x square minus y square is equal to 2 है, this is the equation of rectangular hyperbola. बेटा ये डायरेक्ट इक्वेशन है rectangular hyperbola. अगर आप कॉनिक सेक्शन पढ़ोगे उसमें आपको डायरेक्टली करनी आ जाएगी वैल्यू। ये डायरेक्ट ही सी ऑप्शन है इस चीज के लिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बहुत इजी टॉपिक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉम्प्लेक्स को मैंने 3 वीडियोस में डिस्ट्रीब्यूट करके आपको टीच किया है। तीनों ही वीडियोस काफी इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए एनडी एग्जाम्स के लिए। थैंक यू।